الدین عند اللہ الاسلام صلوات روایتیں بھی بڑی ہیں، حدیثیں بھی بڑی ہیں، لیکن علماء سے بھی یہی سنا ہے، کتابوں سے بھی یہی پڑھا ہے کہ جس کو سیدہ بلا لے وہ آ جاتا ہے۔ اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ مجلس حسین کیا ہے۔ میں نے ابھی قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی، اہل علم سارے بیٹھے ہو، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے، کسی ایک بھی آج کی نوجوان نسل میں کوئی ایک بات بھی سمجھ میں آ جائے تو اس سے بڑی کوئی اور میرے خیال میں عبادت نہیں ہے۔ مقصد سمجھانا ہے، کوئی واہ واہ کروانے سے یا نعرے لگوانے سے کوئی اور مجلس نہیں لینی، مقصد عبادت ہے، جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو نماز بھی اسی نے سکھائی ہے جس کا یہ ذکر ہے واہ 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 واہ، کہ بلا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ چھوٹی سی آیت نہیں ہے، یہ قرآن کی وہ آیت ہے جس میں اللہ نے دین کو بھی سمجھایا، اسلام بھی بتایا۔ آج دین میں لوگوں نے مسئلے بنائے ہیں، آج اسلام کو جو ہے وہ فرقوں میں بانٹ دیا ہے۔ دین بھی سمجھایا، اسلام بھی سمجھایا، لیکن دین سمجھایا کس نے ہے؟ میں بس وہی دو جملے سنانا چاہتا ہوں، ایک درود پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ دوستان محترم، یہ جو دین اسلام ہے، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہی اسلام ہے۔ اسلام سلامتی والے کو کہتے ہیں، اسلام میں غصہ جائز نہیں ہے، اسلام میں بد اخلاقی جائز نہیں ہے، اسلام میں زور سے بولنا ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام درس دیتا ہے کہ توبہ کرو اور معاف کرو، یہ اسلام درس دیتا نا، اور تو کوئی چیز نہیں۔ اور جس کی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں یہ وہ مجلس ہے جس کے لیے انبیاء کتاروں میں بیٹھے ہیں۔ کہ اللہ آج وہ حدیث بتانے لگا ہوں، تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام، 11ویں مولا کا فرمان سننا اور یاد رکھنا گھروں تک جا کے اس بات کو۔ 11ویں مولا فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام جنت میں بیٹھ کے اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اجازت دے ہم حسین کے روضے کی زیارت کریں۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، یہ بلا فضیلت کوئی نہیں ہے، حسینی بنو بس، تفرقوں میں نہ پڑھو، کوئی تفرقہ نہیں ہے، حسین سب کا ہے، حسین سب کا ہے۔ جس کی مجلس ہے اسی کا ذکر کروں گا۔ حسین سب کا ہے، نہ حسین شیعوں نے لیا ہے، نہ سنیوں نے لیا ہے، نہ کسی اور فرقے نے لیا ہے۔ اچھا، جو لوگ حج کر کے آئے ہو گواہی دو گے میرے ساتھ، نہیں کر کے آئے تو حاجیوں سے پوچھ لینا ان سے کہ جیسے ہی وہ داخل ہوتے ہیں نا مکہ میں اور کعبہ کے نزدیک جاتے ہیں تو بیت اللہ کے باہر دروازے پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں کافر کا داخلہ منع ہے۔ میری طرف دیکھنا، یہاں کافر کا داخلہ منع ہے۔ کافر کون ہے؟ عیسائی، حالانکہ اہل کتاب ہے۔ قرآن کہتا ہے اس کے ساتھ کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، رشتہ داری کر سکتے ہو، بیٹھ سکتے ہو، پھر اللہ کے گھر میں آنا کیوں حرام ہے؟ میری طرف دیکھنا۔ اب جو یہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے، بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے، کسی سے پوچھ لینا، حاجی اس بات کی تصدیق کریں گے تو یہی کہیں گے کہ کافر کا آنا حرام ہے۔ کافر کون ہے؟ وہ عیسائی ہے جس نے نبی کو نبی نہیں مانا، یہودی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، یا بدھ مت کا ماننے والا ہے، کوئی بھی وہ جس نے اسلام کو چھوڑا ہے وہ کافر ہے۔ لیکن اب سر پہ قرآن رکھ کے بتانا، جو حسین نے دین دیا، جو حسین نے درس دیا، وہ نانے سے لیا تھا، وہ نانے سے لیا تھا، لیکن نانے کے درس کو جس طرح حسین نے بیان کیا ہے وہ کوئی نہ بیان کر سکا۔ عزیزان محترم، بہت بڑا جملہ دینے لگا ہوں، کعبے میں جانا شرط ہے کہ مسلمان ہو، اگر دل میں منافقت ہو تو کعبے کے اندر جا سکتا ہے، لیکن کربلا کے در حسین پہ دیکھ، وہاں کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہاں ہندو بھی آ سکتا ہے، یہودی بھی آ سکتا ہے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ، وہاں کافر کا داخلہ نہیں لکھا گیا، کیوں آتے نہیں ہیں؟
क्यों आते हैं राहिब? किसी ने पूछा है, मैं मौला का ज़वार बना, मौला आपको ज़वार बनाए हुसैन का, क्यों? अंबिया की तारों में है। मैंने हदीस सुनाई है 11वें मौला की। 11वें मौला फरमाते हैं, उलमा इस हदीस को पढ़ते हुए रोते हैं, इस हदीस को पढ़ते हुए रोते हैं। क्यों रोते हैं? वो कहते हैं कि देखो क्या मुकाम है अजमत हुसैन का, कि 1,23,999 नबी जन्नत में बैठ के कहते हैं, या अल्लाह हमें इजाजत दे, हम हुसैन की कब्र की ज़ियारत करें, हमें इजाजत दे। आवाज़ कुदरत आती है कि तुम्हें जन्नत अजीज नहीं, जन्नत क्यों छोड़ रहे हो? जन्नत के लिए तो सारी दुनिया है। और वो कहते हैं कि नहीं, 60 हिजरी से पहले का मेराज तेरा था, जो मेराज तेरे नबी ने किया, और तूने अपने अर्श का मेराज करवाया है, क्योंकि वो अर्श मुअल्ला है, और हमारा मेराज हुसैन की कब्र है, जो वो करबलाए मुअल्ला है। हमें इजाजत दे। जियो जिंदगी हो, जिंदगी ये हो। कोई ऐसी हदीस नहीं है। हुसैनी बनना है, मुसलमान कहलवाओ लेकिन हुसैनी बनो। दो ही चीजें हैं। इस दरसगाह से हमने यही लेना है, हुसैनी बनना है। मजलिस किसकी है? हुसैन की। खुदा की कसम उलमा कहते हैं, नमाज में 10 बंदे आ जाए, जमात हो जाए, 10 बंदों का सवाब फरिश्ते लिखते थक जाते हैं, इंसान लिखते थक जाते हैं, सवाब खत्म नहीं होता। अरे 10 बंदे जमात में आ जाए तो नमाज का सवाब खत्म नहीं होता। ये उसका जिक्र है जिसने चलती नमाज को रोक दिया। ओए 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 वाह ये उसका जिक्र है, कोई आम हस्ती नहीं है, कोई आम हस्ती नहीं है। और हुसैन कौन है? जिसके बारे में रसूल ने कहा, अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन, हुसैन तो मुझसे है, मैं तुझसे हूँ। बड़ा अजीब फलसफा है, बड़ा अजीब फलसफा है। भाई नवासा तो नाने से हो सकता है, कभी नाना भी नवासे से हुआ? ओए 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 बोलो ना मेरे साथ, जरूर बोलते जाना। कभी नवासा तो है नाने से, कभी नाना भी नवासे से हुआ है? कोई बोला यही तो बताना चाहता हूँ, रसूल ने यही तो समझाया है कि ये तरीका जो मैंने बताया इसको अपना लो, कहीं दर बदर की ठोकरें नहीं मिलेंगी, क्योंकि दरे हुसैन ही अफजल है, कोई और दर नहीं है। अजीजों, अब यूं समझा दूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह को मुतारफ कराने वाला हुसैन, मुहम्मद रसूलुल्लाह को सही बताने वाला हुसैन, अली वलीउल्लाह का प्रचार करने वाला हुसैन, नमाज का तरीका बताने वाला हुसैन, नमाज को कायम करने वाला हुसैन, रोजे को अदा करने वाला हुसैन, ज़कात देने वाला हुसैन, हज का तरीका बताने वाला हुसैन। कोई ऐसा दीन में अरकान है जो हुसैन ने नहीं बताया? अगर माँ की पहचान है तो हुसैन से पूछ, अगर बेटी की पहचान है हुसैन से पूछ, और बहन का पर्दा पोषना है तो हुसैन से पूछ। ओए 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 वाह जी यार तो यही दीन है ना, तो दीन में और तो चीजें नहीं है ना। माशाअल्लाह, हुसैन ने नमाज पढ़ी, हमारी नमाज में कोई आ जाए तो हमारी नमाज खराब हो जाती है, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना? हुसैन की नमाज देख, शिवर का खंजर भी है, नमाज भी जारी है। हुसैन का रोजा देख, पानी भी बंद है, रोजा भी जारी है। हुसैन की ज़कात देख, कोई है जो हुसैन पे कुर्बानी दे? कुर्बानी देने के लिए जानवर भी आ गए, कुर्बानी देने के लिए फरिश्ते भी आ गए, कुर्बानी देने के लिए जिन्नों की तादाद आ गई। नहीं आया तो वही नहीं आया जिसने इस्लाम का ठेकेदार कहा। इस्लाम तो सलामती वाला है, सलामती का अमन देता है। भाई लड़ाई झगड़ा तो है नहीं किसी से, हमने दरसे हुसैनी लेना है, हुसैन की इस मजलिस से ही मिलना है। ये वो जगह है, तेरा 8वां मौला फरमान सुनाने लगा, और सलवात पढ़ ले सारे बाबा दे। 8वें मौला रजा बादशाह, ये वो इमाम है जो सबसे अलहदा हो गया। आज 17 सफर है, आज उसी की शहादत का दिन है। मेरा दिल चाहता है उसका जुमला सुना दूं। ये वो मौला है जिसको जामन कहा गया। भाई जामन तो सारे ही हैं, इसको क्यों कहा गया? ये वाक़या जरा आज बता दूंगा, मोमिनीन को पता चल जाए जामन क्यों कहा गया। ये वो मौला है जिसको जामन, खुदा की कसम ये वो मौला है। अब जरा जुमला सुनना, इस इमाम ने फर्श अज़ा का मकसद बताया। खुदा की कसम कोई दिन ऐसा ना होता जिस दिन मौला के घर में मजलिस हुसैन ना होती, कोई दिन कोई रात ऐसी ना होती जिस दिन मौला अपने घर में फर्श अज़ा ना बिछा दे। और कहते हैं कि जब फर्श अज़ा मदीने में बिछ रहा था ना, रसूल के घर में जब ये बिछ रहा था फर्श अज़ा, तो ये जो दरिया है ये तेरे 8वें मौला खुद बिछाते थे। नौकर भी थे, नौकर भी थे, गुलाम भी थे, सब कहते मौला हमें। कहा नहीं, तुम्हें नहीं पता, ये फर्श अज़ा वो है जहाँ फरिश्ते उतरते हैं और फरिश्ते उतर के अपने परों को मस करते हैं। इस जगह से
مس کرتے ہیں اور مس کر کے جب اوپر جاتے ہیں جو اوپر اللہ کی تسبیح و تقدیس میں لگے ہوتے ہیں ان کو جا کے کہتے ہیں دیکھو ہم کہاں سے آئے ہیں. وہ ایسی خوشبو سونگ کے کہتے ہیں کہ یہ کون سی خوشبو ہے, کہاں سے لے کے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم عزاداران حسین کے پاس بیٹھ کے آئے ہیں, ہم فرش اعزا سے ہو کے آئے ہیں, اس مٹی سے ہو کے آئے ہیں. جملہ سنو گے, عزاداروں جیسے وہ کہتے ہیں دوسرے فرشتے جو تسبیح و تقدیس میں ہوتے ہیں وہ اپنے پروں کو ان کے پروں کے ساتھ مس کرتے ہیں. اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہے؟ حسینی بننا ہے. حسینی کبھی لڑائی نہیں کرتا, حسینی کبھی غصہ نہیں کرتا, حسینی کبھی کسی کے آگے گالی نہیں دیتا. حسینی بننے کے لیے یہی چیزیں ہیں, جذبہ ہو عشق کا, جذبہ ہو عشق کا. کربلا میں کیا نہیں تھا؟ 6 ماہ کا بچہ بھی تھا, کربلا میں جوان بھی تھا, کربلا میں شادی والے بھی تھے, کربلا میں کڑیل جوان بھی تھے, کربلا میں بوڑھے بھی تھے. بوڑھوں کا جذبہ دیکھ, صحابی رسول تھے, بوڑھے تھے, 90 سال کی عمروں سے گزر جانے والے صحابی, جذبہ دیکھ کہ مولا وقت آئے سب سے پہلے میں قربان ہو جاؤں گا. یہ جذبہ تھا. یہ حسینی کیا ہمارے اندر ہے؟ اور یہی چیز دیکھنی ہے کہ بلا کہ ہمارے اندر یہ جذبہ کیوں نہیں ہے, ہم نے یہ جذبہ کیوں نہیں لیا. ہم تفرقوں میں اسی لیے پڑے ہیں کہ ہم نے حسین کے درس کو چھوڑا, ہم نے یہ درسگاہ حسین چھوڑی. یہ تو وہ درسگاہ ہے جہاں تیرے امام تشریف فرما ہے, جہاں مولا بیٹھے ہیں. علماء سے سنتے ہو پھر ادب نہیں. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب بیٹھنے لگو نا تو ارد گرد دیکھ کے سر نیچے کر کے درود پڑھا کرو, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیوں ہو سکتا ہے تیرے نزدیک 12واں امام نہ ہو, تیرے نزدیک چوتھا امام نہ ہو, تیرے نزدیک 5واں امام نہ ہو, تیرے نزدیک امیر المومنین نہ ہو. بڑی کوئی ہے؟ روایات میں پڑھنا, روایات میں یہ باتیں علماء سے سننا, کسی مرضی سے علماء سے پوچھنا کہ کیا فضائل ہے, کیا فضائل ہے. خدا کی قسم 2 ہستیاں ہیں جو مجلس حسین کے لیے مامور ہیں. مردوں کے دروازے پہ مولا امیر کائنات کھڑے ہیں اور عورتوں کے دروازے پہ سیدہ خود کھڑی ہیں. جو مرد آتا ہے مولا اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں یہ میرے حسین کا عزادار ہے. اور جو مومنہ آتی ہے سیدہ سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں کہ یہ میری بچیوں پہ رونے والی بیویاں ہیں. خدا کی قسم اس سے بڑا اور کیا جملہ دوں گا. جملہ یہ سنانے لگا ہوں کہ دین سیکھنا ہے حسین سے سیکھ, دین سیکھنا ہے حسین سے. کیونکہ تیرے 8ویں مولا کی آج شہادت ہے, انہی کا ایک ذکر سنا کے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. یہ 8ویں مولا ہے, گزر رہے ہیں رستے سے کہ جا کے میں اپنے بابا اپنے جد کو رو لوں. کوئی وقت دیکھتے تھے اور رونے بیٹھ جاتے تھے, کوئی بات یاد کرتے تھے رونے بیٹھ جاتے تھے, کوئی رستے میں ملتا اس سے پوچھتے ہیں تجھے پتا ہے حسین کے ساتھ کیا ہوا, تجھے پتا ہے سید سجاد کے ساتھ کیا ہوا. اگر وہ بتاتا تو تیرا امام بیٹھ کے روتا. یہی فرش اعزا ہے. جا رہے تھے تو رستے میں ایک شکاری ملا. شکاری کیا تھا, ایک ہرنی پکڑ کے لے کے جا رہا تھا ذبح کرنے کے لیے. ہرنی نے دیکھا امام کو, اپنی لبوں کو ہلا کے آواز دی کہ ہو سکتا ہے مجھے کوئی بچانے والا آ جائے. خدا کی قسم امام نے اس کی آواز کو سنا, امام نے اس کی آواز کو سمجھا. امام گئے, کہنے لگے اس کو کہاں لے کے جا رہا ہے, کہاں لے کے جا رہا ہے؟ اسے پکڑا ہے, ذبح کروں گا, گوشت بنا کے کھاؤں گا. کہا تجھے پتا ہے یہ کہنا کیا چاہتی ہے, کہنا کیا چاہتی ہے, یعنی کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے کہ میرے بچے چھوٹے ہیں, مجھے ایک دفعہ یہ چھوڑ دے, میں بھوکے چھوڑ کے آئی ہوں, انہیں ایک دفعہ دودھ پلا کے واپس آ جاؤں, پھر یہ مجھے بے شک ذبح کر لے. ایک دفعہ میں انہیں چھوڑ کے دودھ پلا کے آ جاؤں, ایک دفعہ. جب اس نے یہ اجازت مجھ سے کہا نہیں تو جانور ہے, تجھے جانے دوں گا, پھر کہاں سے آئے گی, جانور ہے. مولا مسکرا کے آگے کہتے ہیں شخص تجھے نہیں پتا, اس کو چھوڑ دے. کہا کیوں, آپ اس کے ضامن ہیں, آپ اس کے ضامن ہیں؟ کہا ہاں میں اس کا ضامن ہوں. کہا کیسی ضمانت؟ کہا میں اس وقت تک تیرے پاس بیٹھا ہوں جب تک یہ آ نہیں جاتی, جب تک یہ آ نہیں جاتی, اس وقت تک میں تیرے پاس بیٹھا ہوں جب تک یہ آ نہیں جاتی. امام نے ضمانت دی, اس نے چھوڑ دیا, ہرنی گئی. اب اس نے جو وقت دیا تھا وہ وقت گزر گیا. ادھر سے جو بیٹھا تھا شکاری وہ پریشان ہوا, وہ آیا مولا کے, مولا کو جانتا نہیں تھا, وہ آیا مولا کے پاس. اس نے کہا جی آپ نے ضمانت دی تھی, دیکھا میں نے کہا تھا نا جنگلی جانور ہے وہ بھاگ گیا. آپ نے فرمایا صبر کر, آتی ہے, میں بیٹھا ہوں تیرے پاس. وقت گزرتا گیا, جب کافی وقت گزرا کیا دیکھا کہ وہ اپنے دونوں بچوں کو لے کے
उसी तरफ आ रही है, उसी तरफ आ रही है। मौला ने आते देखा ना, उस हिरनी से पूछा बता देर क्यों हुई? कहने लगी मौला देर कोई नहीं थी, मैं जैसे ही बच्चों को दूध पिला के चलने लगी ना तो रास्ते में मेरी कौम के कुछ लोगों ने फर्श अज़ा बिछाई थी, मजलिस हो रही थी, मैं उस मजलिस में बैठ गई जाके। मैंने सोचा कि मैं मजलिस सुन लूं, हो सकता मेरी जिंदगी की आखिरी मजलिस हो, मैं हुसैन के गम में रो लूं, मैं हुसैन के बच्चों को रो लूं, मैं हुसैन के बच्चों को रो। देख हुसैन की सखावत देख, ये हिरनी है, इधर ये जुमले सुने थे, तेरा इमाम मछली की तरह तड़पने लगा, आंखों से खून जारी हुआ, रोने लगा। जब रोने लगा ना वो आगे बढ़ा, उसने पूछा ऐ शख्स तू है कौन, तू है कौन? फरमाया तूने पहचाना नहीं, मैं मदीने से आया हूँ, तेरा 8वां मौला रज़ा है, अज़ादारों कर्ब पड़ा है, कदमों में गिरा है, कदमों में गिर के कहता है मौला मुझे पता नहीं चला आप और यहाँ आपकी तो ज़ियारत होगी, मैंने तो मदीने आना था। और जुमला सुनोगे अब क्या फरमाया? फरमाया अब ये आ गई है, तूने इसको ज़िबा करना है या इसके बच्चों को देख के छोड़ना है, या तुझे करबला में हुसैन के बच्चे याद आ गए हों, या तुझे करबला में हुसैन के शहजादे याद आ गए हों। ये है इमाम ने फर्श अज़ा बिछाया, और फर्श अज़ा का मकसद ये है कि यहाँ से दरस हुसैन हो, यहाँ से कोई और दर्स ना हो। बस 2-4 जुमलों में फजाइल खत्म करने लगा हूँ और मसाइब के आने लगा हूँ। क़िबला शाह साहब आप किस मकसद को मालिक पूरा फरमाए। हमारा काम है सादात का, सादात को अल्लाह ने मुंतखब किया है, सादात को अल्लाह ने सरदारी दी है, ये अल्लाह का इनाम है, ये किसी की तरफ से कोई चीज नहीं मिली, ये अल्लाह का इनाम है। तो सरदारों को चाहिए कि वो सरदारी रखें और उनकी रैयत को चाहिए कि उनकी ताबेदारी रखें, यही हुसैनियत का दर्स है। तो अजीजान मोहतरम जुमला देने लगा हूँ, दीन किसी मौलवी ने नहीं समझाया, दीन किसी आलम ने नहीं समझाया, अली से दीन चला है, अली से दीन सहाबा, सहाबा से दीन ताबे, ताबे से तबाइन, तबाइन से मुताबईन, ये चलता हुआ दीन सूफिया के पास पहुंचा। और खुदा की कसम सूफी भी कोई ऐसे नहीं थे, वो भी सैयद थे। मौलाना रूम को हम पढ़ के आलम बनते हैं और मौलाना रूम शाह शम्स तबरेज को पढ़ के मौलाना बनता है, कोई आम बात नहीं है, ये वो हस्तियां हैं। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, आवाज़े बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हमें दीन किसने सिखाया? कलंदर के पास जाओ, होता है तेरे साथ में मौला का, यही तारीख मिलती है। बाप का नाम इब्राहिम अल मजाब है, ये वो है जो मौला हुसैन के हरम में दफन है। मजाब इसलिए कहते थे कि जब सलाम करते ना कब्र हुसैन पे अंदर से जवाब आता, इसलिए मजाब कहा गया। ये दीन देने, दीन सिखाने ये आए हैं, दीन बताने। दीन तलवार से नहीं आया, तेरे नबी ने तलवार नहीं उठाई, न तलवार दी, न तलवार उस वक्त उठाई है जब दीन पे हर्फ आया। इसलिए हुसैन ने अगर जान दी है तो इसलिए नहीं दी कि भी तख्त ताज चाहिए था, नहीं, बताना मकसूद था कि दीन मोहम्मद में खून रेजी हराम है। ये तो शरीयत है ना, शरीयत किसी ने नहीं समझाई, शरीयत हुसैन से समझी। और आओ मैं 2 जुमले ये यहाँ दे के ख़त्म करना चाहता हूँ कि दीन सिखाने वाले कौन हैं, वो हुसैन। मैंने ये बता दिया, आप लोगों ने सुन लिया। आओ अजमेर शरीफ वाले के पास, ये दादा उस्ताद है बाबे फरीद का, बाबे फरीद का दादा उस्ताद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, और इनके मुरीद थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, उनके मुरीद थे बाबा फरीद। बाबा फरीद वो है जिसने अपने चाहने वाले से कहा था, जिसने कहा था कि तूने मुझे अपना नाम दे दिया कि या फरीद कह, और खुद अल्लाह समद कह रहा है और दरिया अबूर कर रहा है, तो मैं भी अल्लाह का नाम लूं। जब ये बात सुनी ना, कहा बात सुन, फिर तू अल्लाह का नाम ले। अल्लाह का नाम लेने लगा तो गर्क होने लगा, जैसे पानी में डूबने लगा ना, कहना राज समझ में नहीं आया, खुद को कहता है मेरा नाम ले, खुद अल्लाह का नाम लेता है। मुस्कुरा के फरीद कहते हैं कि पहले फरीद समझ, अल्लाह बाद में समझना। ऐसे फकर नहीं मिलती, ऐसे फकर नहीं मिलती। अजीजान मोहतरम, उनके दादा उस्ताद है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। आओ अजमेर शरीफ में, यूपी उत्तर प्रदेश जाओ, अजमेर जिला है, वहां जाके देखो उनके मज़ार अक़दस पे कोई नाम नहीं लिखा, बल्कि वो अशार लिखे हैं जो जाके उन्होंने पढ़े थे करबला में, जो पूछे थे मौला अली से और करबला में पढ़े थे। वो आम अशार नहीं है। जब मौला के हरम में गए ना ख्वाजा, उन्होंने जाके सलाम अर्ज किया कि मौला इजाजत है, ये इजाजत है कि कुछ अशार आपके बच्चे के पढ़ना चाहता हूँ। कहा जाओ करबला में जाके पढ़ना, करबला में जाके पढ़ना। अशार पढ़ने के लिए पहुंचे, रोज़े
अक़दस इमाम हुसैन में जैसे ही पहुंचे ना, सलाम के बाद सर झुकाया, सीने पे हाथ रख के कहते हैं क्या जुमला कहा है सरकार ने? शाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन। जैसे ही सोचा ना, शाह तो छोटा लफ्ज है, शाह तो छोटा लफ्ज है, शाही तो है ही है, साथ ही कहा बादशाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। भाई क्यों कहा? शाही जमीन पर होती है, बादशाही लौलाक पे होती है, बादशाही। और ये दो जुमले देने के बाद तीसरा जुमला किबला ने कहा, क्या जुमला था, क्या जुमला था, मेरी तरफ देखना, क्या जुमला था? जुमला कहा, क्या कहा? दीन अस्त हुसैन, दीन तो है ही हुसैन, नमाज सीखनी है हुसैन के पास आ, रोजा सीखना है हुसैन के पास आ, जो कुछ सीखना है वो हुसैन के पास आ, यही तो दर्स करबला है, हुसैनी बनना है। आजादारो बस आगे जुमला आपको देने लगा हूं। फिर फरमाया जब दीन पर मुसीबत आ जाए, जब दीन पर मुसीबत आ जाए, लोग बातें करनी शुरू कर दे, लोग रोजे की तकरीम छोड़ दे, लोग रोजे की तकरीम छोड़ दे, नमाज की तकरीम छोड़ दे, हज की तकरीम छोड़ दे, तो जब दीन पर मुसीबत आए, फिर फरमाया क्या? जब दीन अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, फरमाया दीन पनाह अस्त हुसैन, फिर दीन भी हुसैन से पनाह मांगता है कि आ फिर मुझे बचा। हुसैन ने फिर नमाज को भी बचाया, हुसैन ने फिर रोजे को भी बचाया, हुसैन ने हर उस बात को बचाया जो रसूल ने दीन में बता दी थी। ये है हुसैनी। तो दीन भी हिफाजत लेने वहां पहुंचा। यहाँ उलमा बहुत सारे अशार पढ़ते हैं, मैं बस मुख्तसर करूं। फिर फरमाया कि वो ऐसे थे जो हक के आगे डटे, जिन्होंने बातिल को नहीं माना, जो हक पे कायम रहे। और हक क्या था? सरदार नदाद दस्त दर दस्त यजीद, उन्होंने यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसने दीन को खत्म किया था, उसने दीन की नामूस को खत्म किया था। तो दीन की नामूस पर जब बात आएगी तो हुसैन आएगा। अब अगला जुमला सुनो, फिर आगे फरमाया, आगे तो हद ही खत्म कर दी, अब शर्क के फतवे लगाने हैं तो ख्वाजा साहब पे लगा, या फिर सोचना घर में बैठ के। जब फरमाया हक्का के बिना ला इलाहा तो हुसैन, फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत हुसैन है, ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत हुसैन है। तो अजीजान मोहतरम, ला इलाहा इल्लल्लाह हुसैन है, चूंकि ला इलाहा इल्लल्लाह को बताने वाला हुसैन है, इसका मकसद समझाने वाला हुसैन है। तो मालूम हुआ कि दीन को समझना है तो हुसैनी बनना होगा, दीन को समझना है तो हुसैन के दर पे आना होगा। हुसैन के दर पे आने के लिए किसी फिरके से होना जरूरी नहीं है, हुसैन के दर पे आने के लिए हुसैनी होना जरूरी है, हुसैनी होना जरूरी है। और अगर ये हस्तियां राजी हो जाएं तो फिर क्या बात है, कैसी शिफात होगी, कैसी शिफात होगी। अब आखिरी जुमला देके फजाइल खत्म करने लगा हूं। एक सलावत हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, अंतर सलवार। हमें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती समझ में नहीं आते हैं, हुसैन समझ में नहीं आते हैं, अली समझ में कैसे आ गया, मोहम्मद समझ में कैसे आ गया। यही तो समझाना है कि इन हस्तियों को समझने के लिए मसलों में मत जाओ, इनके लिए बस आंखें बंद करो, सर झुकाओ। ये अजमत की जगह है, अदब की जगह है। और अदब यही नहीं कहता कि भाई इनके सामने जो है ना वो मसले शुरू कर दो, मत पूछो। उलमा से मसले पूछने हैं, नमाज के पूछ, रोजे का पूछ, हज का पूछ, ज़कात का पूछ, जिहाद का पूछ। खुदा की कसम करबला में दो चीजें हुसैन ने वाजे की हैं, अमर बिल मारूफ नहीं है नल मुनकर। और करबला में हुसैन ने ये चीजें वाजे की हैं, क्या? तवल्ला और तबर्रा। जो हुसैनी था वो तवल्ला है, और जो उनके मुकाबले में आया वो तबर्रा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे बुलंद सलवार। किबला तुराबी साहब ये कहते हैं ना जी कि भाई अगर अल्लाह माफ कर देगा तो फिर क्या करोगे? आओ कुरान सुनाता हूँ, सूरह तौबा के पहले बिस्मिल्लाह नहीं है, है कि नहीं? वो किन के लिए उतरी है? वो उनके लिए उतरी है जिन्होंने कलमा पढ़ा और रसूल के साथ वादा किया फिर छोड़ दिया। पहले कलमा पढ़ा, फिर वादा किया, फिर छोड़ दिया। अल्लाह ने बिस्मिल्लाह नहीं भेजी। उसी सूरत में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मेरा रसूल अगर ये मर जाए इनके जनाजों पे मत जाना,
मैं अल्लाह तुझे कह रहा हूँ, और अगर तूने 70 2 72 मर्तबा इनके लिए मगफरत मांगी, मैं अल्लाह इन्हें माफ नहीं करूंगा। फिर तू कैसे कहता अल्लाह माफ कर देगा? ऐसी भी कोई बात है? आओ बुखारी शरीफ की हदीस सुन लो। क्या होगा? एक आवाज आएगी, अहले माशर इकट्ठे होंगे। जब सारे इकट्ठे होंगे उस वक्त एक आवाज आएगी, ऐ अहले माशर अपनी आंखों को बंद कर लो। क्यों? दुख्तरे रसूल आ रही है, दुख्तरे रसूल आ रही है। बस मैंने जुमले खत्म कर दिए, यही दर्स देना था, टाइम बहुत हो गया। तो जुमले मसाइब के सुन लेना। दुख्तरे रसूल आ रही है। किस हाल में आएगी रसूल की बेटी? साथ एक लाशा होगा सर बुरीदा, जिस पे सर नहीं होगा, जिस्म पे तीर होंगे। साथ एक बच्ची होगी जिसकी सन 4 साल होगा, उसके दोनों कानों से खून निकल रहा होगा। साथ एक हाथ में कपड़ा होगा। वो किसका होगा? एक छोटे बच्चे का। वो छोटे बच्चे का कपड़ा होगा। अर्श का पाया पकड़ के रसूल की बेटी कहेगी, अल्लाह मेरा इंसाफ कर। इमाम बुखारी कहते हैं अर्श हिलना शुरू होगा, अर्श हलारे में आएगा। रसूल सजदे से सर उठाएंगे, कहेंगे या अली जल्दी कर, अगर आज ज़हरा ने इंसाफ मांग लिया तो कोई नहीं बचेगा। जल्दी कर मेरी बेटी से जाके कह दे, जो रोता रहा है इस मजलूम पे, जो आंसू बहाता रहा है उसे माफ कर दे, जिन्होंने जुल्म किया है उन्हें जहन्नम में भेज दे। ये तेरा नबी कहेगा। बस अजीजो हुसैन सबका है। जुमले मैं 2 देने लगा हूँ, और जुमले भी कोई ऐसे नहीं है। ये ऐसे, इससे बड़ी दर्द क्या होगी? हम इसलिए नहीं रोते कि हुसैन को बरसी लगी, हुसैन को तलवार लगी, हुसैन ने शहादत दी दीन बचाने के लिए। रोते इसलिए है कि हुसैन के बच्चों को क्यों मारा गया, हुसैन की बेटियों के ये दौर क्यों उतारे गए, हुसैन की बहनों के पर्दों को हाथ क्यों डाला गया। हम रोते इसलिए है कि भला रोना तो इसी बात पे है कि हुसैन एक बच्चे को लेके गए थे तो तीर क्यों मारा गया। हम रोते इसलिए है, हमारा रोना जायज है। क्यों? हुसैन जिंदा थे तो रसूल रो रहे हैं, हुसैन रसूल के हाथों पे थे तो रो रहे हैं। हम तो अब रो रहे हैं ना कि या हुसैन तेरे बच्चों पे इतनी मुसीबत आ गई। ये जो अय्याम सफर है ये कोई आम अय्याम नहीं है, ये मुहर्रम से ज्यादा सख्त है। इसीलिए तो लोग जाते हैं करबला, बीबी ज़ैनब का बरसा लेके पैदल चल के जाते हैं कि बीबी देख, तूने कहा था कि जब मुझे आजादी मिलेगी मैं भाई की कब्र पे आके रोऊंगी। आज देख रोने वाले हैं। बस जुमला देने लगा हूँ मौला सज्जाद का। मौला सज्जाद फरमाते हैं कि मजलिस हुसैन में 2 बीबियां जरूर आती हैं, पर्दादारों में 2 बीबियां जरूर आती हैं। किबला कौन? फरमाया कि मेरी फुफी जनाब ज़ैनब और दूसरी मेरी बहन जनाब सकीना। वो आके बैठती है, जब तुम लोगों को रोता हुआ देखती है, जब तुम लोगों का मातम देखती है तो बीबी सकीना पूछती है, फुफी अम्मा क्या इन्होंने असगर के तीर लगते देखा था? क्या इन्होंने अकबर के बरसी लगते देखी थी? क्या इन्होंने चचा अब्बास के बाजू कलम होते देखे थे? उस वक्त जनाब ज़ैनब कहती है नहीं, इन्होंने सुना है तो ये रो रहे हैं। अपने जख्मी कानों पे हाथ रख के कहती है, बीबी अल्लाह ये उस वक्त होते मेरा अकबर बच जाता, मेरा असगर बच जाता। अल्लाह अकबर। रोना अपनी किस्मत से है, रोना ना इमाम ज़माना से इस्तिग़ासा पढ़ लिया करो। बस आज़ादारो, ये वो है बीबियां जो आती हैं, कहती हैं जब मजलिस खत्म हो जाती है, मजलिस खत्म हो जाती है, हर मोमिन अपने घरों को चले जाते हैं, लेकिन इस फर्श आज़ा पे ये दोनों बीबियां बैठी रहती हैं। जनाब सकीना पूछती है, किससे? जनाब सकीना पूछती है कि फूफी अम्मा हमने नहीं जाना। कहा नहीं, उठो मेरे साथ हो। छोटा सा हाथ पकड़ती है, एक जगह पे आके कहती है, यहाँ ये मोमिन मेरे अकबर को रो रहा था, यहाँ असगर के टुकड़ों पे रो रहा था, यहाँ ये मुझ पे रो रहा था। एक जगह पे बैठ के बीबी रोती है। बस आज़ादारो, ये वो बीबियां हैं जिसके बारे में तेरा चौथा इमाम फरमाता है, जब वापस आए ना तो इब्ने मुनज़र मिला। इब्ने मुनज़र ने वाक़या पूछा, तेरे मौला ने फरमाया, इब्ने मुनज़र याद रख, 2 बीबियों का सज्जाद पे एहसान है जो कभी नहीं भूलेगा, जो कभी नहीं भूलेगा। करबला से लेके कूफा, कूफे से लेके शाम तक 2 बीबियों का एहसान है। इब्ने मुनज़र कहता है वो कौन सी 2 बीबियां हैं? अब जो मसाइल सुनने मेरी तरफ देखिए, वो कौन सी 2 बीबियां हैं? कहा एक मेरी फूफी ज़ैनब है,
ایک میری پھوپھی زینب ہے، جب شمر مجھے تازیانے مارتا جناب میری پھوپھی میرے اوپر گر جاتی اور وہ تازیانے اپنے اوپر لیتی، یہ میں احسان نہیں بھول سکتا۔ عزادارو جملہ سنو گے، اب جو نہیں رویا وہ اس جملے پہ ضرور روئے گا۔ دوسرا جملہ کیا؟ ابن منظر پوچھتا دوسری بی بی کون ہے؟ فرمایا وہ میری بہن سکینہ ہے۔ کہا کیوں؟ ابن منظر کہتے ہیں کہ جب مجھے سنگل پہنائے گئے تھے، اتنے وزنی تھے کہ میری کمر جھک گئی، اور جتنے مہار تھے ان کی مہاروں کی جو مہار تھی وہ میری کمر کے ساتھ یہ شمر باندھ دیتا اور مجھے کہتا کہ سجاد اسے کھینچ، اور میں جب کھینچتا میرے پاؤں میں کوئی جوتی تو تھی نہیں، پاؤں میں کانٹے لگتے، پاؤں زخمی ہو جاتے، میری بہن گر کے اپنے زخمی کانوں کو زمین پہ رکھتی اور کہتی سجاد بھائی اپنا پاؤں اٹھا۔ میں اپنا پاؤں اٹھاتا، پہلے میرے پاؤں کو چومتی، پھر اپنے ہونٹوں سے کانٹے نکالتی۔ کیوں؟ ہاتھ جو بچے ہوئے تھے۔ رو کے کہتی ہے سکینہ سجاد اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے